Dear students, we are starting with previous year questions from the topic interference of light, and let us start, dear students. First question which we have is two waves having intensity in the ratio 9:1 produce interference. The ratio of maximum to minimum intensity is equal to. So they are asking maximum to minimum intensity, dear students. July 2022 का question है ये. First, what is given to us? They have given intensity का ratio. They have given us I1 by I2, which is nothing but 9 by 1. So we can write I1 by I2 as A1 by A2 the whole square. When I say A1 by A2, which means what? Amplitude का square, बराबर? Because intensity is directly proportional to amplitude का square. So here you can say that A1 by A2 comes out to be what? 3 by 1. Now I max by I min ka, dear students, you have two formulas. First is this, A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square, and the other is what, dear students? Instead of I1 you can write root of I1 plus root of I2. A1 के जगह पे root I1 minus root I2, whichever you like you can use, dear students. So I have A1 by A2 as 3:1. So A1 I'll take it as 3 as of now. 3 plus 1 upon 3 minus 1. 3 plus 1 children will become what? 4. 4 upon 2. So answer comes out to be how much, beta? 4 by 2 is 2:1, and 2:1 का square is how much, beta? 4 upon 1. Option C. It's a very straightforward question based on intensity distribution between coherent sources in YDSC. Okay. Moving on to the next question. In the Young's double slit experiment, the slit widths are in the ratio 1:9. The ratio of intensity at minima to that of maxima. Minima to maxima पूछा है बेटा. अपने को स्लिट विड्थ दिया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चिल्ड्रन कि स्लिट विड्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इंटेंसिटी को. तो स्लिट विड्थ W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 बाय I2. What is W1 by W2? 1:9 is equal to I1 by I2. Therefore, can I write A1 by A2 the whole square? क्योंकि मैं बता चुका हूँ इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो A1 by A2 the whole square will be 1/9. Therefore, A1 by A2 will be 1/3. Simple है. Dear students, can we proceed ahead? Now we want to find intensity minima upon maxima. तो I min upon I max. प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है. क्या फॉर्मूला बनेगा? वहां पे A1 प्लस A2 था, यहाँ पे आएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 चिल्ड्रन. ओके. सो नाउ A1 कैन बी रिटन एज A2 by 3 बराबर है, और यू कैन राइट A2 as 3A1. A2 as 3A1. Let's finish this off. Numerator becomes minus 2A1. Here it becomes 4A1. So it will become 2 by 4. The minus sign, minus doesn't make sense because it is square. तो 1/4 हो जाए. 1 सिंपल है, 1/4. Move on to the next question, dear students. Two coherent sources, light sources, have intensity in the ratio 2x. Intensity ratio given to you, dear students. What is intensity ratio? I1 by I2 आपको दे दिया है. How much it is? 2x. Produce an interference pattern. The ratio of what are they asking? I max minus I min upon I max plus I min. Let us do one thing, dear students. First find I max plus I min. फॉर्मूला याद कीजिए. I max अपॉन I min का फॉर्मूला क्या था? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि I max क्या है? A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर है, और I min क्या है? A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. ठीक है, चलो तो पहले I max प्लस I min कर लेते हैं. I max क्या है डियर स्टूडेंट्स? A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर. I min क्या है डियर स्टूडेंट्स? A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला फॉर A plus B and A minus B. It will become what? A1 square plus 2A1 A2 plus A2 square plus A1 square minus 2A1 A2 plus A2 square. Eventually this and this will cancel out. You are left with 2A1 square plus A2 square. Directly add कर दिया ना like terms को हमने इन दोनों को. तो I max by I min आ गया. अब क्या कर लेते हैं? अब हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, दैट इज I max माइनस I min. एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन में वी आर गोइंग डायरेक्टली स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं. खाली डिफरेंस ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर
माइनस 2a1a2 प्लस a2 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए चिल्ड्रन, a1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2a1a2 विच विल बिकम 2a1a2 और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4a1a2. लेट्स फिनिश दिस प्रॉब्लम. I max plus I min, sorry, I max minus I min, this is minus children, upon I max plus I min. तो I max by I min is I max minus I min हमारे पास है 4a1a2. I max plus I min भी हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 2a1 square plus a2 square. When I cancel it becomes 2a1a2 upon a1 square plus a2 square. But as you know, intensity is amplitude का square. तो amplitude will be root of intensity. तो हम directly लिखेंगे 2 I1 के जगह पे लिख देंगे root of intensity, that is I1 root I2 upon यहाँ पे हो जाएगा I1 plus I2. You know the ratio is given to you. I1 is 2x. तो आंसर आ जाएगा अंदर root 2x हो जाएगा. This will become 1 root 2x plus 1. Simple. So अच्छा, this is sorry, this will not be in root, it will directly be add up, तो 2x plus 1. तो फाइनल आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 2 root 2x plus 1. No, not possible. Option D, correct. 2 root 2x upon 2x plus 1. So अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरा ये मानना है कि आप अगर जेई के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन YDSC Young's double slit experiment, slit separation is made threefold. The fringe width becomes what? Slit separation fringe width, this one beta is equal to what? Lambda badu d upon chotu d. Slit separation means what? Small d. So if you are making small d, increasing small d, beta will decrease na. If you are increasing how much? By 1/3 na. Simple. Or shall I do it? B2 upon B1 is equal to D1 upon D2. करना पड़ेगा क्या? पहले वो कितना था? D था, फिर बाद में कितना कर दिया? 3D. तो B2 will become what? Beta 1 divided by 3. डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चा लोग, फॉर्मूला बेस्ड. The two slits separated by distance of 1 mm, distance slit separation दिया चिल्ड्रन, that is small d is equal to 1 mm, are illuminated with red light of wavelength 6.5 into 10 raised to minus 10. तो लैम्डा आपने को दे दिया 6500 एंगस्ट्रॉम. The interference fringes are observed on a screen placed at 1 meter. तो सोर्स टू स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया आपको, ये छोटा d दे दिया बेटा, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, ये आपका स्क्रीन है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको कैपिटल D दे दिया. The distance between the third dark and the fifth bright, so this where is somewhere here it is fifth bright, तो B5, somewhere here it is third dark, D3, और इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है बेटा. ओके, सो व्हेन दे आर टेलिंग ऑन द सेम साइड टू टेक सेम साइड, ऐसा भी हो सकता है ऑपोजिट साइड का बोलेंगे, फिलहाल के लिए सेम साइड ले रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट फॉर ब्राइट बैंड, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है बेटा होता है xn इज इक्वल टू एल लैम्डा बड़ू डी बाई छोटू डी, बराबर है. एंड फॉर डार्क बैंड इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इट इज xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बड़ा डी अपॉन 2d. चिल्ड्रन मैं तो बच्चों को बच्चों में ये बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, विच ब्राइट बैंड इट इज गिवन 5, तो डायरेक्टली 5 लिखो, 5 लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, एंड जो भी डार्क देते हैं ना उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देने का, सिंपल, ज्यादा मैथ्स नहीं करने का. कितना दिया है? फिफ्थ ब्राइट है और थर्ड डार्क है ना, थर्ड मतलब 2.5 लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी. डेल्टा एक्स विल बी व्हाट? 5 माइनस 2.5 लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, दैट डिस्टेंस दे आर आस्किंग ना बेटा, डिफरेंस उनके बीच का. तो दिस विल बिकम 2.5 लैम्डा 6.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. डी इज 1 मीटर्स एंड दिस इज हाउ मच? 1 मिलीमीटर, तो 10 रेज़ टू माइनस 3. तो यू मल्टीप्लाई बेटा, 2.5 कैन बी रिटन, 2.5 इंटू 6.5 डायरेक्टली करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 7. 25 5 are 125, 12 carry, 25 6 is 150, 150 plus 12 makes it 162, करेक्ट. तो 162 मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है, कर लेते हैं अभी के लिए. तो 16.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7,
तो इट विल बिकम 16.25 इंटू 10⁻⁻7 है ना, ये हो गया. अब इसको स्प्लिट अप कर देते हैं. 1.625 इंटू 10⁻⁻6. ओके, और नीचे का वी हैव एडजस्टेड इट. तो डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, और ये एडजस्ट करने के बाद लेट मी चेक हैव आई पुट द वैल्यूज़ करेक्टली. हाँ, तो जो भी हमको आंसर आना चाहिए बेटा वो हमको आना चाहिए था माइक्रो में. उन्होंने जो भी आंसर दिया है वो mm में दिया है. तो आई एम नॉट 100% श्योर वेदर इट हैज़ टू बी लाइक दैट, बिकॉज हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया उस हिसाब से तो परफेक्ट वैसे जाना चाहिए. एज ऑफ नाउ विल गो विद 1.63 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होना चाहिए, बट गॉड नोज व्हाई, मे बी ऑप्शंस आर डिफरेंट. लेट्स मूव. In a double slit interference experiment, the distance between the slits, छोटा d, is 0.05 centimeter, and the screen is 2 meter away from the screen. This is capital D beta. The wavelength of light lambda is given to you. The distance between the fringes बेटा आपको बीटा पूछा है या बैंडविड्थ बोल सकते हैं. What is lambda? -5 सेंटीमीटर्स ना. I'll write -7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. What is capital D? 2. What is छोटू d? 0.05. तो 5 into 10⁻². Again centimeter has to be converted into meter, तो 10⁻². Okay, what will be beta? 12/5 into 10⁻7 plus 4. 12/5 is how much beta? 2.4 into 10⁻3. So it will become what, dear students? 0.24 into 10⁻². आगे करने की जरूरत है क्या? चलो. In the Young's double slit experiment, the intensity on a screen at a point where path difference lambda is k. First case is this only beta. आपको पूछा है what will be the intensity at a point where path difference is lambda by 4. वो एक्स्ट्रा में है, क्वेश्चन मार्क है बेटा. Try to understand. There is a formula for it बेटा. नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 4i cos square 5/2. दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज. बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, सो व्हाट विल इज द फेज डिफरेंस? 2π, बट लेट्स डू इट. लेट्स राइट द फॉर्मूला. पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2π टाइम्स व्हाट? फेज डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस इज व्हाट चिल्ड्रन? लैम्डा. तो व्हाट विल बी फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज योर 2π. फर्स्ट केस का फेज डिफरेंस आ गया. बाद में कितना बोला है बेटा? लैम्डा बाय 4. तो क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस 2 कितना हो जाएगा? अगर आपका लैम्डा के लिए 2π है तो लैम्डा 4/4 के लिए कितना हो जाएगा? 2π डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. सिंपल मैथमेटिक. तो कितना हो जाएगा बेटा? π/2. φ1 आपको मालूम है 2π. φ2 आपको मालूम पड़ गया है π/2. नेट इंटेंसिटी की फॉर्मूला लगाते, केस 1 चालू करते. आई नेट इज इक्वल टू 4i cos square. फेज डिफरेंस इज 2π डिवाइड बाय 2. व्हाट इज 2π डिवाइड बाय 2? 2 कैंसिल. cos square pi. What is pi? cos pi कितना होता है? -1. -1 का स्क्वायर हो गया +1, तो 4i. And they are telling that this intensity which you are getting is nothing but k. So आपको k कितना आ गया? 4i. Let's go to case 2. Now they are telling कि phase difference is different. What is the phase difference now? I net is equal to 4i cos square π/2 divide by 2. What is π/2 divided by 2? π/4. What is π/4? 1/√2. 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है चिल्ड्रन? 1/2. करेक्ट. What is 4i? 4i कितना होता है बेटा आपका? k. तो k into half. How much it is become बेटा? k/2. Simple. Straightforward result है dear students. Can we proceed? ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In Young's double slit experiment performed using a monochromatic light of wavelength lambda,
When a glass slab of refractive index 1.5 of thickness x lambda is introduced in the path of one of the interfering beams, the intensity of the position where the central maxima occurred remains unchanged. The value of x is, okay, they are telling intensity कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब आपके इसको डालने के बाद भी आपका जो सी बी भी है वो वहीं पे आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो चेंज। चलिए आपको पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला तो याद आया होगा, इसमें जो पार्ट डिफरेंस आता है होता है म्यू माइनस 1t, करेक्ट है। एंड दे आर टेलिंग डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो है वो चेंज हो नहीं रहा है, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स वो सी बी बी के पार्ट डिफरेंस है। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर सी बी बी? इट इज़ व्हाट, एन लैम्डा, और यू कैन से इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो हम डायरेक्ट लैम्डा लिख देते हैं। सी बी बी के लिए 1 लैम्डा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सॉरी म्यू माइनस 1 इंटू टी, हाँ, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी जो आपका पार्ट डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। दैट शुड बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। चिल्ड्रन टी का वैल्यू दिया है, हाउ मच इट इज एक्स लैम्डा, आपका लैम्डा ऑलरेडी इधर है, म्यू का वैल्यू इज व्हाट 1.5 माइनस 1 एक्स, अच्छा लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स विल बी व्हाट 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 इज 0.5, तो एक्स कम्स आउट टू बी हाउ मच 2। आई होप आपको ये कंसेप्ट याद है, क्या है कॉन्सेप्ट, S1 रहेगा, S2 रहेगा, जब स्लैब नहीं रहेगा तो ये दोनों इंटरफेयर यहाँ पर ही करेंगे, लेकिन आप बीच में अभी एक स्लैब डाल देंगे यहाँ पे S1 के, तो बेटा आपका ये जो बैंड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा CBB, तो आपका ये ओल्ड पोजीशन ऑफ CBB था, ये नया पोजीशन है आपका CBB का, इतने से जो हुआ है वो आपका शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। ये सब पूरा डेरिवेशन पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन रिकॉल, ये आप पढ़ोगे क्लास में, थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो इसीलिए हम इतना डिटेल में नहीं कर रहे, PYQ कर रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ओके। शिफ्ट का फॉर्मूला बनता है म्यू माइनस 1 टी बड़ा डी अपॉन छोटा डी, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये सब याद रखो आप। और फिर कितना फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ है, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्डा, दैट इज नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चा, ये सब क्लास में हो चुका है, आप याद रखिए, ये सब प्रॉब्लम्स में काम आएगा हमको, ठीक है। चलिए बट फिलहाल के लिए इसका ये सिंपल सा आइडिया ये है कि अगर वो इंटेंसिटी चेंज हो मतलब CBP पे ही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 0.6 mm अपार्ट, मतलब स्मॉल d is given to you, interference pattern is observed on a screen at a distance 80 centimeter from the slit, the capital D is given to you, the first dark fringe is observed on the screen directly opposite to one of the slits, the wavelength of light is, let's draw the diagram, this is small d, this is your screen, यहाँ होगा आपका सेंट्रल ब्राइट बैंड, और आपको जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज D1 मिल रहा है वो S1 के जस्ट सामने मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, व्हाट इज द कंडीशन? वी कैन सिंपली से दैट हमारा जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी odd integral multiple of lambda by 2 children, which is nothing but 2n minus 1 by, करेक्ट। हमको फर्स्ट डार्क चाहिए तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा 0.5 लैम्डा, बराबर है। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस? इट वाज व्हाट y इंटू छोटो डी अपॉन बड़ू डी, करेक्ट है। और उन्होंने क्या बोला है डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस y जो हम लेते हैं वो y इज कहाँ पे बेटा, एकदम सामने फॉर्म हुआ है, तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक लगाओ, ये लाइन को मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, मुझे बस एकदम सिंपल लॉजिक बताना, ये d है, ये डिस्टेंस कितना होगा फिर आपका d/2, तो y के जगह पे हमने d/2 लिख दिया, ये d हो गया, ये बड़ा d हो गया 0.5 लैम्डा, लेट अस फिनिश शिफ्ट, d का वैल्यू 0.6, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, mm को कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर भी हो रहा है तो स्क्वायर भी लिख दिया,
2, capital D is 80 into 10 raised to minus 2. Let's put the values. Half lambda, 2 cancel. Children, 6 ka square will become what? 36 into 10 raised to minus 8. 8 into 10 raised to minus 1, and that will be the value of lambda. If I solve 36 divided by 8, how much it will become, beta? 8 4s are 32. It will become 4 remaining, so 40. So it will become 4.5. So 4.5 into 10 raised to minus 9. Okay, sorry, minus 7. So comes out to be 4,500 angstrom. Beautiful. If they are asking in nanometer, so I'll write 450 nm. सिंपल, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना है आपको बेटा. ऐसे ही एक कंसेप्ट मिसिंग वेवलेंथ का भी आता है जो क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मतलब मिसिंग वो तो ये 0.5 लिखा है ऑड के लिए, वो n रहता है जनरली और फिर उसको सॉल्व करके आता है, बट वो क्लास में हो चुका है अपना. In Young's double slit experiment, slits are separated by a gap of 0.5 mm. Slit separation छोटा d दिया children, and the screen is placed at a distance 0.5 meter from them. Capital D is given. The distance between the first and the third bright fringe from them, the slits are illuminated. First and third bright. Children, ये टाइप का फॉर्मूला किया था तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं. डेल्टा x इज इक्वल टू x3 माइनस x1, 3 लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d माइनस 1 लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d. आंसर विल बिकम 2 लैम्डा बड़ा d बाई छोटा d. What is wavelength given to us? 5890 into 10 raised to minus 10. What is capital D? 0.5. This is 0.5 into 10 raised to minus 3 mm में. 0.5 cancels out. 2 into 5890 will come out to be 90. 5 the 16 plus 1 17. 11780 into 10 raised to minus 10 और ये 3 minus 7. 11780 into 10 raised to minus 7 becomes this, option B, correct? Direct. If the source of light used in YDSC experiment is changed from red to violet, then what will happen to the cases? So first is consecutive fringes will become closer, मतलब bandwidth will decrease. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल कम डार्क फ्रिंज. नो, ये नहीं होता, ये हमारे लॉइड्स मिरर में होता है बेटा. जब हम कुछ अलग करते हैं, जहाँ पे हमने अलग ही सिचुएशन रखा है कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है लैम्डा बाई 2 का. फ्रिंज विल बिकम ब्राइटर, उसके लिए भी अलग सिचुएशन आता है जहाँ पे आप अलग अलग लाइट्स यूज़ कर लेते हो. यहाँ पे हम एक लाइट से दूसरी लाइट चेंज कर रहे हैं. जब हम बहुत सारी वाइट लाइट ले लेते हो तब आपको पर इल्यूमिनेशन मिलता है. Intensity of minima will decrease. See, we are not changing any phase difference. We are not doing anything. तो हमारा वो चेंज नहीं होने वाला. Let's try to do it. कहाँ गया? Yes. Bandwidth का डायरेक्ट स्टूडेंट्स डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा बड़ा d by छोटा d. Bandwidth is directly proportional to lambda. We know that wavelength of red light is greater than wavelength of violet light. So what you are doing is you are going from red to violet. मतलब you are decreasing the wavelength. If you decrease the wavelength, bandwidth will decrease. Hence option A is correct. Simple. In Young's double slit experiment, two slits are separated by 2 mm. Again, slit separation is given to you, and the screen is placed 1 meter away. D is given to you. How much is D? 1 meter. When light of wavelength 500 nanometer lambda is given to you, the fringe separation will become. Fringe separation beta is equal to lambda bada d by chota d. I think you guys can do it. 500 मतलब 5 into 10 raised to 2. Nanometer is 10 raised to minus 9. Bada d is how much? 1. Chota d is how much? 2 into 10 raised to minus 3. 5 by 2. 2.5 ऑप्शन में होना चाहिए. ऑप्शन है. सी न्यूमेरिकल ये सब अभी इजी क्वेश्चन आ रहा है तो ये वो था तो कर लिया हमने. The width of one of the two slits in अभी आगे अच्छे क्वेश्चंस है. The width of one of the two slits in Young's double slit experiment is 3 times the other slit. Width is 3 times. Okay. If amplitude of the light coming from the slit is proportional to the slit width, मतलब they are telling amplitude is directly proportional to width. The ratio of minimum to maximum intensity of the interference pattern is x by 4. Then what is x is?
September 1, 2021. Let's proceed ahead. Amplitude 1 upon amplitude 2 is equal to width 1 upon width 2. What is width 1? 3W2 upon W2. W2 W2 cancel. Amplitude का रेशियो आ गया अपने को 3:1. Minimum to maximum, can you recall formula? I minimum upon I maximum, A1 minus A2 the whole square, A1 plus A2 the whole square. What is A1 minus A2? It will become what? 3 minus 1, 3 plus 1 the whole square. 3 minus 1 is 2, 3 plus 1 is 4, 2 upon 4 is 1 by 2, 1 by 2 का square is 1 by 4. हमको x by 4 दिया है ना, तो x by 4 और हमको आंसर आया 1 by 4. तो बेसिकली x क्या हो गया अपना? 1. चलो, in a Young's double slit experiment, light of wavelength lambda is 500 nanometer is used to produce an interference pattern. When the distance between the slit is 0.05 mm, the angular width theta पूछा है, और वो भी किस में पूछा है? डिग्री में. थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, बट ये किस में होना चाहिए? रेडियंस में. ओके, नाउ हमको निकालना है, बोला है लैम्डा दिया है क्या आपने को? यस. हाउ मच? 500. डी इज ऑल्सो गिवन ना? यस. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. 500 mm कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻⁷ ये हो जाएगा, प्लस 5 है ना, क्योंकि वो -0 उसका चला गया. 5 कैंसिल. 10⁻² आ रहा है. थीटा रेडियंस में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है. रेडियंस के लिए पाई बाय 180, तो डिग्री के लिए 180 बाय पाई, तो 180 बाय पाई रेडियंस में था, इंटू 10⁻². मतलब बेसिकली 180 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻² कितना होता है? 180 डिवाइड बाय 3, 60 के आसपास. तो अप्रोक्सीमेटली 60 इंटू 10⁻², तो अप्रोक्सीमेटली 0.60. ऑप्शन सी है ना. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ इज 12 mm. फ्रिंज विथ बीटा दिया है. इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया आपने को बेटा 4/3. फ्रिंज विथ बिकम्स, अभी किया था, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी. बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. स्वीट एंड सिंपल. आप सेटअप को एयर से वाटर में लेके जा रहे हो. एयर से वाटर में लेके जा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? आप उसका वेवलेंथ चेंज कर रहे हो ना. कि न्यू रिकॉल द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर. सो नाउ वी कैन गो विद दिस लॉजिक. बीटा इन वाटर upon beta in air will be lambda in water upon lambda in air, okay, which is nothing but 1 upon mu na. So beta fringe width in water will become beta in air, fringe width in air divided by mu. So what was that? 12 divided by 4/3. ऊपर चला जाएगा. 12 3 36, 36 divided by 4 9. चिल्ड्रन शॉर्टकट सिंपल है. अगर मीडियम चेंज होता है तो आपका लैम्डा becomes what? लैम्डा बाय म्यू लैम्डा डैश. तो अगर वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम होगा तो बीटा भी म्यू टाइम्स कम हो जाएगा. ये CET मेथड है, लॉन्ग कट मेथड. A Young's double slit experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda. The intensity of light at a point on a screen where path difference is lambda is k units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 6 is given by nk by 12, where n is in an integer. The value of n is. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन किया था. फेज डिफरेंस is 2 pi by lambda multiplied by path difference. What is the path difference? Path difference is how much? Lambda. तो phase difference कितना हो जाएगा? 2 pi. सेकेंड केस का निकाल दो. अगर लैम्डा के लिए आपको आ रहा है 2 pi, तो लैम्डा बाई 6 के लिए कितना हो जाएगा? 2 pi by 6, which is nothing but what? pi by 3. क्लियर है दोनों वैल्यूज. इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा क्या फॉर्मूला?
आई नेट इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर 5/2। फर्स्ट केस के लिए करते हैं, 4i कॉस स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, पाई का वैल्यू कॉस पाई 1 -1 का स्क्वायर 1, इंटेंसिटी इज 4i, और इस इंटेंसिटी को उन्होंने के लेने बोला है, ठीक है, इंटेंसिटी इज के यूनिट्स। अब पाई/6 के लिए करेंगे, पाई/3 ना, पाई/3 डिवाइड बाई 2, व्हाट इज पाई/3 डिवाइड बाई 2, पाई/6, 30, cos 30 कितना होता है, √3/2, व्हाट इज √3/2 का स्क्वायर, 3/4, 4 नहीं कैंसिल नहीं करेंगे, रुको रुको, 4i क्या होता है, अभी तो सीखा था k, तो 3k/4 is new intensity, but they are telling that new intensity is not I net, nk/12, लो भाई nk/12 लिख दिया, कर लो मैथ्स का मर्डर, 4 1 3 था, k कैंसिल हो जाएगा तो n will become what बेटा, 9, simple. I think this has been a JEE question, if I can recall it is JEE question, but मैंने mention नहीं किया है. Let's do this question, superb question. Interference pattern is observed at point P due to superimposition of two rays coming out from a source S. Beta, this question is very interesting. Huh? Screen मान लेते हैं. Okay, the value of L for which the maxima is obtained at point P. बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट लॉयड्स मिरर में आता था, ध्यान देना. पहली बात तो पहला वाला जो रे SP ये सीधा चला गया, दूसरा रे जो है वो कुछ ऐसा गया, ऐसा और ऐसा, करेक्ट है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये SP और ये जो है डिस्टेंस इसको O ले लेते हैं, -SO + OP ये करना पड़ेगा बेटा. ओके हमने उल्टा लिखा है एक्चुअली, हमको पार्ट डिफरेंस चाहिए बेसिकली. तो जो सेकेंड रे है, सेकेंड रे जो है उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया SO और OP, और जो फर्स्ट रे उसने सिर्फ सीधा डिस्टेंस ट्रैवल किया SP. तो मेरा फिलहाल इंटरेस्ट है SO और OP निकालना. पहले मैं ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री लगा लूँ. ये डायग्राम को यहाँ पे बना देते हैं, ये ट्राइग्राम हो गया, यहाँ पे बन गया. पूरा डिस्टेंस ये 2L था तो ये L हो जाएगा, इतना डिस्टेंस, ये हो जाएगा 60 डिग्री, करेक्ट. ये हो गया OS, सिमेट्री है, मैं खाली OS निकालता हूँ. साइन 60 लगाता हूँ, साइन 60 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपो. ऑपोजिट पे कौन है, L, हाइपो मेरा हो गया OS, तो OS का वैल्यू हो जाएगा L अपॉन साइन 60. व्हाट इज साइन 60 बच्चा लोग, साइन 60 स्टूडेंट्स होता है √3/2, 2 पर चला गया, OS आ गया, तो OS इज 2L/√3. और वैसे सिमेट्री देखेंगे तो ये भी 2L/√3 है, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 4L/√3 है ना. और ऊपर वाला लेंथ कितना है, 2L. सो पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई, नीचे वालों ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया ना. ओके तो पार्ट डिफरेंस, अच्छा उसमें मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस में एक्स्ट्रा λ/2 भी डाल रहा हूँ. अब इसका भी मैं रीजन बन रहा हूँ. और आपको चाहिए क्या, मैक्सिमा. मैक्सिमा कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या होता है, 2L λ/2, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2. लेट्स प्रोसीड. पहला सवाल ये आता है कि आपने λ/2 क्यों डाला. तो देखिए यहाँ से अगर एक क्रेस्ट निकला, लेटेस्ट से यहाँ से, एरो दिख नहीं रहा है, मैं पर्पल कलर लेता हूँ. यहाँ से अगर क्रेस्ट निकला तो ये भी क्रेस्ट देगा, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये कौन सा मीडियम है, ये रेयर है, ये कौन सा डेंसर. व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ हाउ मच रेडियंस चिल्ड्रन, पाई रेडियन का फेज चेंज होता है. पाई रेडियन इज नथिंग बट व्हाट, λ/2. तो आपका पार्ट डिफरेंस कितने से चेंज हो गया. तो अगर क्रेस्ट आ रहा तो अब क्या हो गया बेटा, ट्रफ. अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए हमने ये लिखा है. तो नाउ लेट मी कंटिन्यू. तो पार्ट डिफरेंस की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, दैट इज 4L/√3. कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय SO + OP माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय SP प्लस λ/2, 2L λ/2. फर्स्ट मैक्सिमा बोला है क्या, ऐसा कुछ n नहीं दिया तो n का वैल्यू 1 ले रहे फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये लैम्डा हो जाएगा माइनस λ/2. ये भाई साहब इधर आ चुके हैं, है ना. नेक्स्ट प्रोसीड करने क्या है, हमको रिजल्ट निकालना है L. तो L को कॉमन ले लेते हैं, पहले 2L को कॉमन ले लेंगे.
विल बिकम 2l माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा √3, तो 2l इधर हो जाएगा 2, अच्छा l कॉमन ले ले तो l क्यों लिया मैंने, हाँ 2 माइनस √3 अपॉन √3, यहाँ पे बच जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा पर 2 इज लैम्डा बाई 2 ओनली। नाउ वी वांट l, तो ये √3 ऊपर जाना चाहिए, 3 √3 लैम्डा और 2 नीचे रहेगा, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 2 सा मेरे हिसाब से 4 हो जाना चाहिए और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस √3। ओके, अच्छा n का वैल्यू रखा है, सॉरी मेरी गलती, मेरे को n का वैल्यू रखा नहीं, तो n का वैल्यू अगर रखेंगे तो मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शंस पे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा चिल्ड्रन, तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो 2n माइनस 1 रह जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका ये बनेगा 2n माइनस 1 लैम्डा √3 अपॉन 4 अपॉन। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन चिल्ड्रन, ठीक है। चलो लेट अस प्रोसीड। कंसिडर अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट as shown in the figure. What should be the slit separation D in terms of lambda such that the first minima occurs directly in front of slit S1? यहीं पे आपको मिनिमा चाहिए, फर्स्ट मिनिमा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा ना, सिंपल। अच्छा हम यहाँ पे वो y sin थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, y sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा 2n माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो डिस्टेंस है ना y, वो कंपेरेबल है d के बराबर, तो ये शॉर्टकट नहीं लग सकता। हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, हम खाली ज्योमेट्री यूज करेंगे। इधर देखो, पहला रे इधर से इधर गया और S2 से एक रे इधर गया, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं S1p ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, S2p ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पार्ट डिफरेंस विल बी बड़ू डिस्टेंस माइनस छोटू डिस्टेंस, S2p माइनस S1p। S2p निकाल सकते हैं क्या, वाई नॉट, ट्रिग्नोमेट्री लगाते ना। ये d है, ये 2d है, पाइथागोरस 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा √5d, तो S2p हमको मालूम है हो गया √5d, S1p ऑलरेडी कितना है देख लो 2d, तो d कॉमन हो गया √5 माइनस 2, वी आर नियर टू द आंसर, √5 माइनस √2 सब में है। ओके, पाथ डिफरेंस, ओके, एंड यू वांटेड व्हाट बेटा, यू वांटेड लाइक कि आपका कितना हो, फर्स्ट मिनिमा हो। व्हाट इज कंडीशन फॉर मिनिमा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है ना, तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। फर्स्ट चाहिए तो ये ऐसा लिखा 2 माइनस 1, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए छोटा d, तो छोटा d विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 √5 माइनस 2, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, फर्स्ट पे 5 माइनस √2 था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर गुड क्वेश्चन है बेटा। In double slit experiment, when a thin film of thickness t having refractive index mu is introduced in front of one of the slits, the maximum at the center of the fringe pattern shifts by 1 fringe width. शिफ्ट कितने से हुआ बेटा वो, 1 fringe width, द वैल्यू ऑफ टी इज, अरे चिल्ड्रन इसका फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूँ सिनॉप्सिस में। फ्रिंज विथ शिफ्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 टी इंटू बड़ा डी बाई छोटा डी, बराबर है, सिंपल है। आपका एक फ्रिंज विथ कितना होता है, मतलब बीटा की बात हो रही है, बीटा क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी। क्या पूछा है, क्या ये इतना इजी क्वेश्चन है, आपको टी पूछा है ना, टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1, सिंपल। बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी होएगा। इन द एडजेसेंट फिगर SP represents a wavefront and AO wavefront and AO at BP, the corresponding two rays. Find a condition on theta for constructive interference at P between the ray BP and reflected ray OP. जी पांडे, so let us try. आ भी चुका है जेई में ये, हाँ आ चुका है ये, तो लेट अस डिस्कस। तो पढ़ते आगे, क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमको निकालना है, अच्छा ये पाथ डिफरेंस निकालेंगे, पाथ डिफरेंस में एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे और उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव के लिए बोल रहे हैं, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा,
2l लैम्डा बाई 2। सुनिए मेरी बात, ये लॉयड मिरर वाला ही फंडा है। यहाँ से आपका क्रेस्ट जाएगा, देखिए ये क्रेस्ट जाएगा, ये क्रेस्ट जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर आपको क्या आएगा बेटा, ट्रफ आएगा। ये भी क्रेस्ट ही आ रहा था, से कोहेरेंट सोर्सेज से आ रहा है ना, तो क्रेस्ट और ट्रफ की मुलाकात हुई। आप सोचेंगे आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, बट आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव। ये सब कहाँ यूज होता है, लॉयड मिरर में होता है, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में होता है, दोनों चीजें हैं बेटा। चलो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट हमको डिस्टेंस एक्स निकालना है, CO और OC। पहले मैं CO OC ये ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, Z ऑल्टरनेट। डायग्राम देखिए, ये थीटा, ये पूरा डिस्टेंस D, ओके, ये है P, ये O। चलिए बोलिए क्या चाहिए हमको, पहले OC चाहिए ना, सॉरी OP है, P है, OP है, ठीक है OP है, मैंने लेबलिंग, C मेरा क्रेस्ट है, और ये डिस्टेंस लेते हैं O डैश। लेट अस फाइंड कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट D, हाइपो इज OP मुझे चाहिए, OP इज D अपॉन कॉस थीटा। परफेक्ट, चाहिए तो D सेक थीटा भी लिख सकते हैं, बट OP नहीं गया। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्री, ये ट्राइंगल देखते हैं। ये थीटा, ये 2 थीटा, बताएंगे ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये है C, ये है O, ये है P। चलिए हमको OC में इंटरेस्ट है। साइन 90 माइनस 2 थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो, करेक्ट। ऑपोजिट क्या है, OC, ये एंगल में इंटरेस्टेड हुआ बेटा, और हाइपो क्या है, OP। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू OP इज व्हाट, OC। तो OC क्या हो जाएगा, OP तो मालूम है, D कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। अब टोटल क्या हो जाएगा, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, OC प्लस OP ना बेटा, यहाँ D कॉस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस OP कितना निकाला है, D अपॉन कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो D अपॉन, एक मिनट, D अपॉन कॉस थीटा है, हाँ, तो D अपॉन कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 D अपॉन कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 2D कॉस थीटा। ये भाई हमारा जो है वो पाथ आया, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, तो 2D कॉस थीटा, और यहाँ पे अपना है लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, तो इट विल बिकम व्हाट, लैम्डा बाई 2, तो D कॉस थीटा विल बिकम लैम्डा बाई 4। CP डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, हाँ डायरेक्ट आ गया। हो ये अपना रिजल्ट है, याद रखना है, ये ऑप्शंस नहीं दिया है, बट D cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल। चलो लेट अस प्रोसीड। Okay. A ray of light in vacuum is incident on a glass slab at an angle 60 degree and refracted at an angle 30 degree along OB as shown in the figure. The optical path length of light ray from A to B is, तो ऑप्टिकल पाथ मैं बता दूं आपको, ऑप्टिकल पाथ मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लाइट ने पहले डिस्टेंस AO ट्रैवल किया किसमें, एयर में, और OB डिस्टेंस ट्रैवल किया मीडियम में, ठीक है, मीडियम हमारा ग्लास है। पहले मैं AO ही निकाल देता हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ये 60 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 30। ये है A, ये AO। चलिए साइन 30 इज ऑपोजिट इज A, हाइपो इज AO विल बी व्हाट, A अपॉन साइन 30। व्हाट इज साइन 30, हाफ, तो AO कितना हो जाएगा हमारा, 2A। परफेक्ट। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं रिफ्रैक्टेड वाली साइड का, दिस एंगल इज 30,
OB, this distance is given to us B. Let's apply. I'm interested in which distance? हाँ OB, चलो O इसको ले लेते X, cos 30 OX अपॉन हाइपो इज व्हाट OB. तो OX कितना है हमारा, ये वाला डिस्टेंस B, cos 30 कितना है बेटा, √3/2, तो हो जाएगा 2B/√3. ये हमारा हो गया OB. मीडियम में था, अगर यही डिस्टेंस वैक्यूम में रखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, म्यू इंटू OB करना पड़ेगा ना. कुछ याद आ रहा है? ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट याद है कि कुछ म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वही चीज को. नाउ म्यू निकालो. म्यू कैसे निकालोगे? स्नेल्स लॉ, साइन अपॉन साइन आर. स्नेल्स लॉ याद है? साइन आई कितना है 60, आर कितना है 30. OB हमने निकाल के रखा है 2B/√3. साइन 60 √3/2, साइन 30 हाफ 2 बचा √3 इंटू 2B/√3. ये आ गया आपका 2B, ये आपका आ गया 2 है. तो टोटल ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया? टोटल पाथ विल बिकम 2A + 2B. ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी. क्लियर है? We move on to next question. In a Young's double slit experiment with light of wavelength lambda, the separation of slits is d and the distance of screen is capital D, such that d is very very large as compared to छोटू d and is very very large as compared to lambda. If the fringe width is beta, the distance from the point of maximum intensity कहाँ होता है? बोलिए. CBB पे. To a point where intensity becomes half of maximum intensity. तो intensity is Imax divided by 2. Imax is always 4I. तो हमारी intensity कितनी हो गई 2. Let's do the mathematics. Net intensity का फॉर्मूला था 4I cos square 5/2. ये हो जाएगा 2I 4I cos square 5/2. हाफ हो जाएगा cos square 5/2. 1/√2 cos 5/2 कितने पे आता है? π/4 5/2. तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? π/2. करेक्ट. फेज डिफरेंस आपका π/2. कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? फेज डिफरेंस इज 2π/λ मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस. मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो डायरेक्ट π/2 के लिए कितना होता है? वेव बना लेने का ना दिमाग में. 0 π 2π π/2 यहाँ पे आएगा, मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री मतलब कितना? 1/4 ऑफ वेव. डायरेक्ट λ/4 बनता है, बट लिख रहे हैं हम लोग. कर यहाँ पे होएगा π/2. बात हो रही थी तो आपका CBB पे जो इंटेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, तो आपका पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0. तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x आपका हो गया 0. यहाँ पे आपका डेल्टा x कितना आ रहा है? ये नए वाले केस में λ/4. आपको पता है बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो λ/4 हो गया, मतलब आंसर β/4. Next. In a Young's double slit experiment, two slits act as coherent sources of equal amplitudes, okay, and wavelength lambda. In another experiment, the same arrangement of the two slits are made to act as incoherent sources of wave of same amplitude and wavelength. If the intensity at the middle point, मतलब CBB, in the first case is I1 and the second case is I2, then बेटा कोहेरेंट सोर्स में और इनकोहेरेंट के लिए अलग फॉर्मूले चलते हैं. कोहेरेंट का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है आई नेट इज इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5, और इनकोहेरेंट में आपको लगाना पड़ता है डायरेक्ट आंसर I1 + I2. ये वाला पार्ट 0 हो जाता है क्योंकि कोसाइन का एवरेज वैल्यू फॉर अ फंक्शन 0 हो जाता है क्योंकि वो इनकोहेरेंस चल रहे हैं. आप डायरेक्ट ऐड करेंगे. एम्पलीट्यूड इक्वल बोला है और CBB की बात हो रही है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0. तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1. और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, मतलब दोनों का इंटेंसिटी भी सेम. तो I1 और I2 दोनों को सेम लिखूंगा. √I हो जाएगा. फाइनल आंसर ये हो गया 4I. ये दोनों का I और I ऐड हो गया, 2I हो गया. ये जो आंसर हमने निकाला है बेटा वो कोहेरेंस से निकाला है. ये आंसर जो निकाला है वो क्या निकाला है? इनकोहेरेंस से. तो NC लिख देता हूँ, नॉन कोहेरेंस. तो IC/NC कितना हो जाएगा? 4I/2I. 2:1. सिंपल.
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक साथ ही यूज कर रहे हैं हम लोग। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाउंड बाय स्क्रीन इज हाइपरबोला। क्यों ऐसा? आप इसको इतना डिटेल में देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है, बट ये रियलिटी में जो है ना बेटा वो कुछ ऐसा है। सिंस आप इतना जूम करके देख रहे हैं तो आपको ये बात पूरा बैंड ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट है, बराबर है, रेक्टेंगल जैसा है, बट वो हाइपरबोला है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफियरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। स्लिट सेपरेशन इज ट्वाइस द वेवलेंथ, 2 लैम्डा। तो आपका डी बाय लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा? 2। सिंपल। आपको मैक्सिमम निकालने बोला डियर स्टूडेंट, इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे सकता हूं। डी बाय लैम्डा, ये वन साइड के लिए, फिर दूसरे साइड के लिए डी बाय लैम्डा, और सीबीबी को काउंट करेंगे तो एक 1 ऐड करना पड़ेगा। तो डी बाय लैम्डा मतलब एक साइड पे आपको 2 मिलेगा। कैसा आता है लॉजिक? वो कुछ ऐसा है, प्लस और माइनस लैम्डा बाई डी लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग? तो प्लस और माइनस 2 लैम्डा बाई डी है ना, तो प्लस और माइनस 1 लैम्डा बाई डी और 0। तो 2 लैम्डा बाई डी मतलब इधर इधर के 2 हो गए, 2 ब्राइट इधर के हो गए, 1 ब्राइट इधर के हो गए, और बीच में ऐसा कुछ हो गया। तो आपका कुछ ऐसा हो गया, ये भाई साहब बीच में सीबीबी आ गए, ये पहला ब्राइट आ गया और ये आपका दूसरा ब्राइट आ गया। तो टोटल कितने हो गए बेटा आपके? 1 2 3 4 5 डायरेक्ट आपको हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और सीबीबी का मिला के 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। इसमें हमने मैक्सिमम काउंट किया है तो हमने वो 90 डिग्री वाला लॉजिक भी लगाया है, वरना इसका अलग फॉर्मूला भी बनता है। डी बाई लैम्डा माइनस हाफ वन साइड के लिए, वो जो वैल्यू का आएगा उसको इंटीग्रल करने का, फिर उसमें सीबीबी को ऐड करने का, वो अलग है। वो क्लासरूम में डिस्कस कर चुका हूँ, वो डीसी पांडे का क्वेश्चन था, वो अलग चीज़ है। ये मैक्सिमम के लिए अलग है, अंडरस्टैंडिंग? To demonstrate the phenomena of interference, we require 2 sources which emit radiation of nearly same frequency, different wavelength, same frequency and having definite phase difference. बेटा फेस रिलेशनशिप हो गया मतलब कोहेरेंट हो गया ना, कोहेरेंट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेम फ्रीक्वेंसी भी रहेगा तो बेस्ट है। तो ये सबसे बेस्ट है, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम फ्रीक्वेंसी, वी कैन गो विद दिस। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड 0.302 मीटर अपार्ट, मतलब हमने को छोटा डी दिया है। ओके, लाइट ऑफ वेवलेंथ 50 nm नैनोमीटर इज इंसिडेंट, द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, बेटा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। अगर हम लोग ब्राइट के लिए बात कर रहे हैं तो 2 भी लगाना पड़ता है, इवन इंटीग्रल, बट वो तो कैंसिल हो जाता है। तो डी का वैल्यू कितना है? 0.30 इंटू 10⁻³ साइन 30 बोला है ना बेटा, एक 30 के लिए बोला है। एन लैम्डा कितना दिया है? 50 नैनोमीटर। चलो एल निकाल लेते हैं, 320 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू हाफ लिख दिया, ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻9। 2 और 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10⁻3 और ये हो जाएगा 320। एक 3.2 इंटू 10⁻3 विच इज हाउ मच बेटा? 320 सॉरी। तो प्लस 30 के लिए 320। अरे आप समझ रहे हैं इंटरफेरेंस बेटा, ऊपर यहाँ पे सीबीबी है, प्लस 30 लेके अगर आप करोगे ओके ये, तो आपको यहाँ पे 320 मिलेंगे, माइनस 30 आप लेके चलोगे तो यहाँ पे आपको 320 मिलेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा, और बीच में एक ब्राइट बैठा हुआ है ना सीबीबी, तो कितना हो जाएगा? 641। अंडरस्टैंडिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर हम ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते लैम्डा अपॉन डी? वो तभी एप्लीकेबल है जब आपका जो डी है वो लैम्डा के मुकाबले बहुत बहुत छोटा रहता है, या आपका वाई जो है वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी होता है। तो दीज आर द PYQs विच वी आर सपोज टू डिस्कस डियर स्टूडेंट्स। इंटरफियरेंस के डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे। विल स्टॉप हियर डियर।